Minister Narendra Modi earlier today visited the crash site where the Air India London-bound flight crashed on Thursday. After being briefed about the situation at the crash site, he proceeded to the hospital where the injured are being treated. Prime Minister Modi is said to have stayed at the site for about 20 minutes to take stock of the situation before moving to the hospital to meet with the injured. He was accompanied by Union Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu, while the Prime Minister took stock of the situation at the crash site. Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel and State Home Minister Harsh Sanghvi and State BJP Chief C.R. Patil were at the Ahmedabad airport to receive the Prime Minister. Meanwhile, families of the victims are gathering at the BJ Medical College to provide DNA samples for identification purposes. 188 DNA samples have been collected so far and 54 more are remaining. An Air India flight from Ahmedabad to London carrying 242 passengers and crew crashed shortly after takeoff on Thursday afternoon. Barring one miracle survivor, no one else could be rescued. Former Gujarat Chief Minister Vijay Rupani was among those killed in the crash. Air India confirmed that 241 out of 242 people aboard the flight have died. An Air India flight heading from Ahmedabad to London Gatwick crashed shortly after takeoff. The flight numbered AI-171 had 242 people on board, including passengers and crew, some British nationals, some Canadian nationals and some Portuguese nationals as well. It departed from Ahmedabad's Sardar Vallabhbhai Patel International Airport at around 1:38 p.m. and within 1 minute, it met a tragic end. Out of the 242 people on board, 169 were Indians, 53 were British nationals, 7 Portuguese nationals, and 1 person was from Canada. Former Gujarat Chief Minister Vijay Rupani was also on board the plane. Prime Minister Narendra Modi earlier today also held a meeting with ministers and officials after visiting Air India plane crash site in Ahmedabad. Prime Minister Modi also said that the plane crash tragedy in Ahmedabad has left everyone devastated, saying that the loss of life of so many, in fact, the loss of so many lives in such a sudden and heartbreaking manner is beyond words. DNA testing of the bodies of the victims of Air India plane crash is underway at the Civic Hospital. Government to, in fact, release the list of deceased soon. The DNA sampling is being carried out at the Kasauti Bhavan Examination Hall of the hospital. In fact, my colleague Neeru Zinzuwadia is at the spot. Let's quickly take a listen. She gets us the latest. इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक परिजन जिनके भतीजे की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है। गुणवंती बेन, ये बताइए कि कब आए थे आपके भतीजे अहमदाबाद और किस लिए को आया था? पप्पा का डेथ हो गया था तो उसका विधि के लिए आया था और कल जाता था। कब थी उनकी विधि? 29 तारीख को। और यहाँ पे उनके परिवार के कौन कौन लोग रहते हैं? दादी है, मम्मी और सिस्टर है, 3 लोग हैं। कहाँ पे रहते हैं आप लोग? न्यू मणिनगर। और लंदन में वो किनके साथ रहते थे? उसकी मिसेस के साथ, लॉरेंस जी। हाँ। और कौन कौन है उनके परिवार में लंदन में? बस वही 2 पति पत्नी थे। यहाँ पर डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया सारी हो गई है? हो गई है। क्या बता रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ से? कब तक शव? नहीं पता नहीं है, इसके लिए जांच करने के लिए मैं आई थी यहाँ पर, तो पता नहीं अभी क्या कब बोलते हैं। आप उनकी क्या लगती है? मैं उसकी बुआ लगती हूँ। तो उनके परिवार के लंदन से कोई आ रहे हैं, उनकी पत्नी या बच्चे? पता नहीं, वो अभी उसको आएगी कि नहीं आएगी उसको बोल नहीं सकते हम लोग कि वो आएगी कि ना आए, पता नहीं। जी जी, बहुत
बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरह से गुणवंती जी बता रही हैं, उनका भतीजा लॉरेंस अहमदाबाद आया था अपने पिता की अंतिम विधि के लिए, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने यहाँ से वो 1 तारीख को लंदन से अहमदाबाद पहुंचे थे अपने पिता की अंतिम क्रिया के लिए। वो जो विधि थी वो सारी हो गई थी और कल यानी कि 12 जून को उन्होंने लंदन के लिए फ्लाइट बोर्ड की थी वापस जाने के लिए, जहां उनकी पत्नी और उनका परिवार लंदन में रहता है। यहाँ उनके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य यहाँ पे रहते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया, न्यू मणिनगर में वो रहते हैं और इस हादसे में वो अपने भतीजे को, गुणवंती बेन, वो उनकी बुआ थी लॉरेंस की, उनको खो चुकी हैं। DNA टेस्ट की जहाँ तक बात है, सैंपल्स उनके परिवार की तरफ से, उनकी माता की तरफ से सिविल हॉस्पिटल में दिए जा चुके हैं। अब रिपोर्ट्स का इंतजार है और फिलहाल शव उन्हें कब तक दिया जाएगा इसके बारे में अस्पताल की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल रही है। काफी परेशान है, काफी दर्दनाक मंजर है इस वक्त अहमदाबाद में। क्या पता लगा था आपको, कहाँ कब वो गए थे, किसने बताया कुछ? फोन आया था मेरी बहन को, दीदी का प्लेन क्रैश हो गया कहते। दीदी ने कहते मेरी बहन चली गई है। सुबह 11 बजे से मैं 12 बजे कॉल करी, वीडियो कॉल, मैं उठा ही नहीं पाई दीदी की कॉल। और फिर मेरी सारी बहनों को भी फोन करा, भाभी से बात हुई, परसों भी फोन करा था, अभी मिलके भी गई थी, सब खत्म हो गया। वो बड़ा भाई था हमारा, कुछ खत्म हो गया। कल एक्चुअली मैं वापस लंदन जा रही थी और मेरी फ़्लाइट का टाइम था 1:10 का, तो हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। मैं वहाँ पे चेक इन के गेट पे पहुँचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है। तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। लेट होने का रीज़न तो यही था कि अहमदाबाद का थोड़ा ट्रैफिक, हम लोग ये सिटी एरिया में थोड़ा एंटर हो चुके थे, तो उस वजह से थोड़ा हमको लेट हुआ था।